today we are going to begin with the lesson number 4 of your class 7 English grammar, that is verb tense. So let's begin with this lesson. Verb क्या होता है? A word that denotes an action or state of being is called verb. जो एक word क्या denote करता है, एक action denote करता है, एक state of being denote करता है, उसको हम verb कहते हैं. So here are the examples of verb. He plays football. प्लेस क्या हो गया आपका एक्शन वर्ड हो गया. मिस्टर पवार इज अ कैशियर. सो इज अ क्या है आपका स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो कैशियर है. सो अ वर्ब मे टेल अस व्हाट अ पर्सन एन एनिमल और थिंग डज. वर्ब हमें बताते हैं कि एक पर्सन, एक एनिमल और एक थिंग क्या करती है, जो चीज कोई एक्शन में हो रही है. सो लाइक ब्रदर पेंट्स. पेंट्स क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई. द बर्ड फ्लाइज. द क्लाउड गैदर्स. सो ये क्या है आपके वर्ब्स है. So what is done to a person, an animal or thing? Verb क्या होती है ये भी बताता है हमें कि एक person को, animal को, thing को क्या हुआ है. The baby is fed. The dog is petted. The grass is mowed. So what a person, an animal or thing is. Verb हमें ये भी बताता है कि person और animal thing क्या है. So I am tall. I am क्या state of being है. The cat is black. The table is broken. So the tense of verb refers to time at which the action shown by the verb takes place. ये tense of verb क्या रेफर करता है, टाइम में जिस टाइम पे एक एक्शन हुआ है वो कौन शोन करता है. verb में जो verb से verb उसकी जगह कौन ले लेता है, verb ले लेती है. The tense thus refers to present, past और future. जो tenses क्या क्या होता है, present होता है, past होता है, future होता है. present क्या होता है, जो चीज हो रही है. पास्ट क्या जो चीज हो चुकी है. फ्यूचर क्या जो चीज होने वाली है. So the aspect of the verb tell us whether the speaker consider the action as complete or still going on. कि जो aspect होता है verb का ये हमें बताता है कि स्पीकर क्या कंसिडर कर रहा है कि एक्शन हो चुका है या फिर चल रहा है अभी. They are thus perfect, complete or continuous. That या तो एक perfect होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब complete हो चुका है. और continuous जो होता है जो चीज चल रही है. Now here are the examples, tenses and their examples. Simple tense. Present में क्या होगा, he teaches Hindi. Past में he taught Hindi. Future में क्या होगा, he will teach Hindi. Continuous, he is teaching Hindi. मतलब जो चीज चल रही है. So he was teaching Hindi in past. He will be teaching Hindi in future. Perfect में he has taught Hindi. He has taught him. He had taught Hindi. Future में क्या होगा, he will have taught Hindi. Now perfect continuous. He has been teaching Hindi. He had been teaching Hindi. He will have been teaching. Here are the tenses and their uses. How to use those tenses. Present continuous tense. Example, I am studying class. Tenses. So क्या होगा, इसके कैसे यूज होंगे, किसमें यूज होता है, टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस नाउ और एट द मोमेंट मेंशन. ये क्या डिस्क्राइब करता है, एक एक्शन जो टेक प्लेस कर रहा है अभी और उसी मोमेंट में जो मेंशन है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स आर, he has just arrived in Delhi. We have learned how to cook. They have been to Imperial. मतलब जो चीज कंप्लीट हो चुकी है. I have lived here since 2003. So क्या यूज होता है इसका, टू शो एन एक्शन दैट जस्ट हैपेंड. ये शो करता है एक्शन जो अभी हुआ है. टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. ये क्या डिस्क्राइब करता है कि पास्ट इवेंट जो उसके इफेक्ट जो कंटिन्यू हो रहा है आज भी हमारे प्रेजेंट में. टू टॉक और राइट अबाउट एक्शन हुज टाइम इज नॉट डेफिनेट. ये क्या करता है, राइट टॉक करता है, राइट करता है एक्शन के बारे में जिसका कोई टाइम डेफिनेट नहीं होता. सो to describe an action that has started in past and still continue. ये describe करता है उन action को जो start हो चुके हैं past में और अब भी continue हो रहे हैं. Now present perfect continuous tense, what are their examples? I have been studying for 3 hours means to describe an action that has started in the past and still continue. ये क्या describe करता है, जो action हमारा past में start हो चुका है और अब भी चल रहा है. Simple past tense, I went to school yesterday. Force action completed at a particular time in the past. ये एक action complete हो चुका है आपका past में एक particular time में. Past continuous tense, I was taking a bath when the doorbell rang.
सो जो कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में एक्शन, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, ये वो उन बातों के बारे में बात करता है जो एक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट में कंटिन्यू हो रहे थे और वहां पे जो हैपन हो रहे थे। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जांपल्स क्या क्या होता है, यस्टरडे आई हैड ईटन माय डिनर बिफोर 8, मतलब कि मैंने कल अपना डिनर 1 बजे से पहले खा लिया था। वी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टीचर कलेक्टेड द बुक्स, सो किस में यूज होता है, फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, कब होता है कि एक एक्शन टेक प्लेस हो रहा है एक सर्टेन टाइम में पास्ट में। when two action happen in the past, जब दो चीजें हुई थी पास्ट में, we use the past perfect tense to indicate which action happens first, हम past perfect tense को यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कि पहले कौन सा एक्शन हुआ था। past perfect continuous tense, when I joined the school Mr. Preston had already been teaching there for 20 years, for an action that began before a certain time, ये एक्शन दिखाता है जो एक सर्टेन टाइम में बिगेन हुआ था पास्ट में और कंटिन्यू हो रहा है अब तक। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस, आई शैल बी 6 years old next year, आई विल स्पेंड माई हॉलीडेज विद माई ग्रैंड मदर, किस में यूज होता है, फॉर इवेंट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है इवेंट्स, फॉर थिंग्स वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, जिनमें हम बिलीव करते हैं और वो होने वाली हैं फ्यूचर में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, going by the weather forecast, it will be raining by the time we get into the city, ये कहाँ पे यूज होता है, to talk about events that will happening at a point of time in the future, ये उनके बारे में बात करता है जो इवेंट्स हमारे एक पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में होने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, I will have reached Delhi by noon. Future perfect tense, I will have reached Delhi by noon tomorrow. By the time I reach home, she will have left for the airport. ये कहाँ यूज होता है, to talk about action that will be completed by a certain time in the future, ये उनके बारे में बात करते हैं उन एक्शन के बारे में जो एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे फ्यूचर में। So when two actions are going to occur in the future, we use the future perfect tense to indicate which action will occur first. जब दो एक्शन होने वाले होते हैं फ्यूचर में तो हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं क्या इंडिकेट करने के लिए कि कौन सा एक्शन हमारा पहले होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच इन जनवरी, by this December I will have been learning French for 6 months, in 3 days time our ships will have been sailing for a year। so uses क्या क्या है इसके, for action which will be in progress over a period of time that will end in the future, जो एक्शन जो प्रोग्रेस में थे पीरियड ऑफ टाइम में और एंड हो जाएंगे हमारे फ्यूचर में। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.